السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شہاب الدین غوری اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 28۔ نہر والا کے راج محل میں ایک روز راجکماری کمار دیوی کی ماتا راج کنول اس کمرے میں بیٹھی اکیلی رو رہی تھی جو کمرہ کبھی راجکماری کمار دیوی کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ اسی مسہری پر بیٹھی ہوئی تھی جو مسہری کبھی کمار دیوی کے استعمال میں رہتی تھی۔ گردن اس کی جھکی ہوئی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی۔ کمرے میں اس کی ہچکیاں اور سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھی کہ اتنے میں راج محل کے اس کمرے میں اس کا بیٹا رامدو داخل ہوا۔ اپنی ماتا راج کنول کو یوں روتے دیکھ کر رامدو لمحے بھر کے لیے اس کمرے کے دروازے پر ٹھہر گیا۔ کچھ دیر تک عجیب سی بے بسی اور لاچارگی میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ پا کر راج کنول نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرنا شروع کر دی۔ رامدو چپ چاپ آگے بڑھا، راج کنول کے قریب بیٹھ گیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ماتا میں جانتا ہوں آپ کمار دیوی کے لیے رو رہی ہیں، لیکن ایسا آپ کب تک کرتی رہیں گی؟ آپ جانتے ہیں کہ اسے تلاش کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ اپنے مخبر بھی چاروں طرف پھیلائے لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رامدو رکا، کچھ سوچا، پھر اپنی ماتا راج کنول کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ماتا آپ لوگوں نے پہلے ایبا پر شک کیا کہ ایبا میری بہن کو اٹھا کر لے گیا ہو۔ میں نے اسی وقت بھی مخالفت کی تھی کہ یہ کام ایبا کا نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایبا کمار دیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے تو اچھا ہی ہوگا، وہ اس کا خیال رکھے گا، اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن میں اور پتا جی نے کمار دیوی کی تلاش کے لیے جو مخبر روانہ کیے تھے ان کے مطابق کمار دیوی کو اٹھائے جانے میں ایبا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس وقت ترائن کے میدانوں میں مسلمانوں کے سلطان کے ساتھ ہماری دوسری جنگ ہوئی تھی، اس وقت جو اطلاع ہمارے مخبروں نے دی وہ کچھ اس طرح تھی کہ ایبا نے شادی کر لی۔ اس کی بیوی کا تعلق لامذہب قوم کھوکھروں سے تھا اور اسی جنگ کے دوران اس کی بیوی کو اس کے رشتہ داروں نے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہو کر اسے ہلاک بھی کر دیا۔ بعد میں یہ بھی سنا کہ جن لوگوں نے ایبا کی بیوی کو ہلاک کیا تھا ان سے ایبا نے خوب انتقام لیا اور ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ ماتا میں جانتا ہوں کمار دیوی کی نگاہوں میں ایبا گر چکا تھا، لیکن وہ ایسا کیا کر نہیں گزرا جس کی کمار دیوی نے اسے سمجھا تھا۔ اگر وہ یہاں رہتا تو میرا ایک بہترین اور طاقتور اور بازو ثابت ہوتا، لیکن کمار دیوی نے اپنی حماقت کی وجہ سے اسے گنوا دیا۔ ماتا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ایبا چلا نہ گیا ہوتا اور کمار دیوی یہی کے پاس رہتا تو جن لوگوں نے کمار دیوی کو اٹھا کر ہم سے جدا کیا تو اسے اٹھا لے جانے والوں کی جرات نہ کرتے۔ اگر وہ کسی طرح کمار دیوی کو لے بھی جاتے تو ایبا کسی نہ کسی طرح اسے تلاش کر چکا ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رامدو رکا، ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، ماتا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ میری بہن کو اٹھانے والے مسلمان نہیں ہندو تھے۔ اب ہمارے مخبروں نے اپنے سارے علاقوں کو کھنگال دیا ہے، کمار دیوی کا کہیں نشان نہیں ملا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے اغوا کرنے والے ہندو کمار دیوی کو مسلمانوں کے علاقوں میں لے گئے ہوں گے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں ہم انہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ رامدو رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، ماتا اس طرح تو آپ رو رو کر اپنی بینائی کو خراب کر لیں گی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے اور پتا جی کو کمار دیوی کی اس طرح کھو جانے کا کوئی غم نہیں ہے؟ ہم پہلے ہی کمار دیوی کو کھو جانے سے ایک طرح کے عذاب میں مبتلا تھے، اب حالات کی بدقسمتی کے ایک اور عذاب ہم پر امڑنے والا ہے۔ رامدو کے ان الفاظ پر راج کنول نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنا چہرہ اس نے صاف کیا، پھر کسی قدر تجسس بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا، بیٹے تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ ہمارے لیے تو کمار دیوی کا کھو جانا ہی سب سے بڑا عذاب ہے، تم کس دوسرے عذاب کی بات کر رہے ہو؟ رامدو نے دکھ بھرے انداز میں کہنا شروع کیا، دوسرا عذاب کسی نوعیت کا ہے ماتا، وہ تو پتا جی ہی آپ کو بتائیں گے۔ تمہارے پتا جی کہاں ہے؟ کس قدر بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے راج کنول نے پوچھ لیا۔ رامدو نے غور سے ماں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ہمارے کچھ مخبر انتہائی اہم خبر لے کر آئے ہیں، میں بھی پتا جی کے ساتھ ہی تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں، اور ان کے آنے تک تم مجھے تفصیل سے بتاؤ ہمارے مخبر کیا خبر لے کر آئے ہیں۔ رامدو نے نفی میں گردن ہلائی، نہیں ماتا، یہ تفصیل تو پتا جی ہی بتائیں گے،
इसलिए कि मैं जब कभी इस मौजू पर गुफ्तगू करता था तो पिताजी ही नहीं मेरी बहन कुमार देवी भी मुझसे नाराज हो जाया करती थी। आप भी खफकफी का इजहार करती थी। अब यहाँ तक कहते कहते रामदेव को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि आयन उसी लम्हे राजा भीमदेव कमरे में दाखिल हुआ। आगे बढ़कर वो राज कंवल के सामने बैठ गया। थोड़ी देर तक बड़े गौर से सामने देखता रहा, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, राज कंवल, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम रोती रही हो और मेरे आने तक रामदेव शायद तुम्हें तसल्ली और तशफी देता रहा है। देखो, इस तरह अकेले बैठकर रोऊंगी तो अपनी सेहत खराब कर बैठूंगी। तुम ईश्वर से दुआ करो कि कुमार देवी का कहीं सुराग, कहीं खोज मिल जाए, फिर मैं उसे निकाल लूंगा। जिन लोगों ने भी उसे उठा ले जाने की कोशिश की है, अगर भगवान ने कभी मेरा उनका सामना किया तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भीमदेव जब रुका तो तफक्कुरात बिखरती आवाज में राज कंवल बोल उठी, आपकी आमद से थोड़ी देर पहले रामदेव कह रहा था कि हमारे कुछ मुखबिर आए हैं और वो अच्छी खबर लेकर आए हैं, अच्छी खबर लेकर नहीं आए हैं। इस मौजू पर भीमदेव की गर्दन झुक गई। कुछ देर वो सोचता रहा, फिर कहने लगा, हाँ, हमारे मुखबिर कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए, ताहम हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन खबरों का कोई बराह रास्त ताल्लुक हमारे साथ नहीं है। कैसी खबरें? राज कंवल ने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए फिर पूछ लिया। कंधे उचकाते हुए भीमदेव कहने लगा, वही पुरानी किस्म की खबरें हैं। मुसलमानों के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होने की खबरें। मुसलमानों के सुल्तान ने जब तराइन के मैदानों में हिंदुस्तान के सारे राजाओं को शिकस्त दी थी तो ये उम्मीद हो चली थी कि मुसलमानों के सुल्तान ने तराइन के पहली जंग में पसपाई का इंतकाम ले लिया है। अब वो मजीद पेशकदमी नहीं करेगा और दरिया सरस्वती ही से लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा पृथ्वीराज और राजा गोविंद राय तो जंग ही में मारे गए थे। अजमेर वालों की खुशकिस्मती के वहां मुसलमानों ने पृथ्वीराज के बेटे गोला को बहाल कर दिया। दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब जो बुरी खबर हम तक पहुंची है वो ये कि अब तक कनौज और बनारस जैसे हमारी मजहबी मरकजी मुसलमानों के तख्त ताज से बचे हुए थे। मुसलमानों का सुल्तान फिर हरकत में आया और चंदवाड़ के मैदानों में उसने जयचंद और राजा पृथ्वीराज के अजीज भाई भीमराज को शिकस्त दी है। कनौज और बनारस के सारे इलाकों पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। भीमदेव जब खामोश हुआ तो कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही, फिर कांपती हुई और लजराती हुई आवाज में राज कंवल कहने लगी, इसका मतलब है कि अब हमारी बारी है और मुसलमान अब हमें अपना हदफ बनाएंगे। मेरे ख्याल में जो बातें रामदेव कहा करता था वो सच ही साबित हो रही है। इस मौके पर एक गायर निगाह रामदेव ने अपने बाप भीमदेव पर डाली, फिर अपनी माँ को मुखातब करके कहने लगा, माता ऐसी बात ना करें, इसलिए कि ऐसी बातें पिताजी को नागवार गुजरती है। वैसे भी मेरा कहा यह सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और न इन पर एतबार करते हैं। मैं पहले भी कहा करता था कि तराइन के मैदानों की शिकस्त को मुसलमान फरामोश नहीं करेंगे, इंतकाम जरूर उतरेंगे और हर सूरत में अपनी पसपाई और हजीमत को फतह में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। माता पिताजी सामने बैठे हुए हैं और इस वक्त मैं आपकी मौजूदगी में कहता हूं कि मुसलमान हम पर हमलावर होने में अब देर नहीं लगाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कुव्वतों को पहले ही कुचल चुके हैं, अब कोई कुव्वत उनके सामने ठहरने वाली नहीं है, लिहाजा अब उनकी निगाहें हम पर जम जाएंगी और हमारा ही रुख करने की कोशिश करेंगे। रामदेव जब खामोश हुआ तब भीमदेव फिर बोल उठा, बेटे, इस वक्त हिंदुस्तान में हम ही सिर्फ आखिरी कुव्वत नहीं है, अभी मुसलमानों से टकराने के लिए बहुत सी कुव्वतें बाकी है। अभी भीमराज दरिया नबरदा के आसपास अपनी ताकत व कुव्वत में इजाफा कर रहा है, वो किसी भी मौके पर मुसलमानों की राह रोक सकता है। इसके अलावा भी मैं तुम्हें कहूं कि इधर उधर बिखरे हुए राजपूत एकजा होने की कोशिश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब ही राजपूत मुत्तहद होकर मुसलमानों से अपने इलाके वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल इस मौजू को छोड़ो, उठो पहले खाने के लिए। इस पर राज कंवल खड़ी हो गई। उसकी तरफ देखते हुए रामदेव और भीमदेव दोनों बाप बेटे भी खड़े हो गए और फिर तीनों उस कमरे से निकल गए। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक चंद रोज बनारस में क़याम करने के बाद वहां का नज़्म नसब दुरुस्त करके वापस दिल्ली जा चुके थे। वहां क़याम के दौरान उन्होंने पहले की तरह नए लश्करी भर्ती करते हुए उनकी तरबियत का काम शुरू कर दिया। इस तरह वो अपने अस्करी कुव्वत में इजाफा करने लगे थे। एक रोज कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक अपने कुछ दूसरे सालारों के साथ तरबियत के मैदानों में तरबियत हासिल करने वाले लश्करियों का जायजा ले रहे थे कि उनके कुछ मुखबिर अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए उनके करीब आए। घोड़ों से उतरकर उन्होंने बुलंद आवाज में सलाम कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक के सामने आए। उनके कुछ कहने से पहले कुतुबुद्दीन ने उन्हें मुखातब किया, मेरे अजीजों, खैरियत तो है? आने वालों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक को मुखातब करके कहने लगा, अमीर, हम एक बुरी खबर लेकर आए हैं। राजा पृथ्वीराज का रिश्तेदार भीमराज, जिससे मुतालिक कहा जाता था कि वो अपने लश्कर के साथ दरिया नबरदा की तरफ जा चुका है, अचानक उसने अजमेर का रुख किया। रात की गहरी तारीकी में राजा गोला पर हमलावर हुआ। राजा गोला ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि शहर की हिफाजत करे, लेकिन गोला को भीमराज के मुकाबले में बदतरीन शिकस्त हुई। राजा गोला अजमेर से निकलकर ना जाने कहाँ चला गया है, जंग में मारा गया है या फरार होकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ है, इससे मुतालिक हमें अभी तक कुछ नहीं पता चला।
लेकिन भीमराज ने बहरहाल अजमेर फतह कर लिया है। अब वो अजमेर का राजा गोला नहीं बल्कि भीमराज है, और अजमेर को फतह करने के बाद उसने बड़ी तेजी से अपनी हालत को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है, इसलिए कि उसे खबर है कि अब जब मुसलमानों को अजमेर की फतह का इल्म होगा तो जरूर अजमेर पर हमलावर होंगे। जहां तक भीमराज से मुतालिक हम मालूमात हासिल कर सके हैं, उनके मुताबिक उसके पास इस वक्त हमसे भी ज्यादा बड़ा ताकतवर लश्कर है। मुखबिर रुका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, अजमेर पर कब्जा करने के बाद भीमराज फारिग नहीं बैठेगा। जहां वो अपने लश्कर में इजाफा कर रहा है, वहां आसपास के बिखरे हुए जंगजू राजपूतों को भी अपने आसपास आने की दावत दे रहा है। इस तरह वो मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग की तैयारी में मसरूफ है। अगर इस पर जल्दी जब्त ना लगाई गई तो अपने अस्करी ताकत में दुगना इजाफा भी कर सकता है। मुखबिर जब खामोश हुआ तब कुतुबुद्दीन और उन मुखबिरों को कुछ रकम मुहैया करने के लिए कहा, साथ ही उन मुखबिरों को अपने साथ ले जाने का भी हुक्म दिया। इस पर वो सालार हरकत में आया और उन मुखबिरों को अपने साथ ले गया। उनके जाने के बाद कुतुबुद्दीन ने ऐबा की तरफ देखा और उसे मुखातब करके कहने लगा, ऐबा मेरे भाई, अब बोलो, ये खबर सुनने के बाद तुम्हारे क्या तासुरात हैं और तुम कैसे रद्द अमल का इजहार करते हो। ऐबा मुस्कुराए कहने लगा, रद्द अमल और तासुरात क्या होने हैं? मेरे ख्याल में आज नहीं तो कम अज कम कल सुबह तक हमें यहाँ से कूच करना चाहिए। लश्कर लेकर हमें अजमेर का रुख करना चाहिए और उस भीमराज को बताना चाहिए कि हम उससे निपटने और उस पर काबू पाने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं। जब तक इस भीमराज का खात्मा नहीं किया जा सकता, उस वक्त तक मैं समझता हूँ वो हमारे लिए मसाइल खड़े करता रहेगा। और फिर मैं समझता हूँ कि भीमराज से निपटने के बाद हम वापस दिल्ली नहीं आएंगे, मेहरवाला का रुख करेंगे और राजा मेहरवाला के राजा भीमदेव के हाथों से उससे पहले जो हमें पसवा इख्तियार करना पड़ी थी उसका इंतकाम लेंगे। ऐबा की अल्फाज सुनकर कुतुबुद्दीन ऐबा खुश हो गया। पहले उसकी पीठ थपथपाई, फिर कहने लगा, ऐबा कसम खुदा की, तूने मेरी ही एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी कर दी है। अब आओ तरबियत के उस मैदानों से निकले, तरबियत हासिल करने वालों की निगरानी और अपने कुछ सालारों के सुपुर्द करो और मुस्तकिल की तरफ चले। मैं चाहता हूँ आने वाले शब को पिछले पैर में हम यहाँ से अजमेर की तरफ कूच कर जाएंगे, पर पहलाने के लिए हमें राजा भीमराज को ज्यादा मोहलत नहीं देनी चाहिए। ऐबा ने इससे इत्तेफाक किया। दोनों तरबियतगाह से निकलकर मुस्तकिल की तरफ चले गए। लश्करियों को उन्होंने तैयारी का हुक्म दे दिया। इस तरह आने वाले शब के पिछले पैर अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने लश्कर के साथ दिल्ली से निकलकर अजमेर का रुख कर रहे थे। भीमराज अब अजमेर का राजा था और मुसलमानों की नकल हरकत पर निगाह रखने के लिए उसने दूर दूर तक अपने मुखबिर फैला रखे थे। जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लश्कर के साथ दिल्ली से निकलकर अजमेर का रुख किया था, भीमराज के मुखबिर उसे मुसलमानों के लश्कर की पेशकदमी की इत्तला कर चुके थे। लिहाजा एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर भीमराज अजमेर से निकल खड़ा हुआ। भीमराज का इरादा था कि वो मुसलमानों को अजमेर से दूर ही रखे ताकि आगे बढ़कर वो अजमेर का मुहासरा ना करने पाए। अजमेर के नवाब में वसी और खुले मैदानों में भीमराज ने अपने लश्कर का पड़ाव किया और उन्हीं मैदानों के अंदर बिल्कुल भीमराज के लश्कर के सामने कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने भी अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया। भीमराज ने देखा कि उसके मुकाबले में मुसलमानों के लश्कर की तादाद कम है, तब उसने वक्त जाया ना करना था। वो चाहता था कि फौरन जंग की इब्तिदा कर दे और अपनी कामयाबियों को यकीनी बनाए। मुसलमानों को भगाने और उन्हें शिकस्त देने के बाद हिंदुस्तान में अपनी शोहरत और अपनी फतह याबी का चर्चा कर दे। अपने इन इरादों की तकमील के लिए भीमराज ने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी। उसके मुकाबले में कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा भी अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर चुके थे। लश्कर को उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था, दूसरा ऐबक की सरकर्दगी में था। अपने अपने हिस्से के लश्कर के सामने कुतुबुद्दीन और ऐबा बिल्कुल मुस्तआद और तैयार थे। शायद वो भीमराज को पहले ही हमलावर होने का मौका फराहम करना चाहते थे। भीमराज के लश्करी भी अपनी सफ़ें दुरुस्त कर चुके थे और थोड़ी देर तक भीमराज के लश्कर में जोर जोर से तुबल बजते रहे, नकारे पीटते जाते रहे। इसके बाद भीमराज ने मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर देखते ही देखते भीमराज मुसलमानों पर उनका कत्लेआम करने वाले तशद्दुद की जुल्मत में तबाही के हयूले खड़े करते उजाड़ मुसलमान की तरफ टूट पड़ा था। जिस वक्त भीमराज और उसके लश्करी हमलावर हुए थे, उस वक्त वो अजीब से अंदाज में जोर जोर से नफ्स की तौहीन की तरह नारे बुलंद कर रहा था। मुसलमानों ने भी रद्द अमल का इजहार करने और अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करने में देर नहीं लगाई। जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने पहले जोरदार हमले शुरू कर दिए। मैदान जंग और रूहों की वहशत और कब्रिस्तानों की आबादी बन गया था। दोनों लश्कर के टकराने से मैदान जंग यूं सदाओं के हुजूम से भर गया था जैसे सिफली जज्बात और हिकमत और अजमत, दहरियत और खुदा परस्ती, मादा परस्ती और रूहानियत, बद इखलाकी और हुस्न इखलाकी, खराफात और हकीकत पसंद एक दूसरे से परसरे पैकार हो गए हो। अजमेर का राजा भीमराज और उसके लश्करी अपने देवताओं के मंदिरों और देवियों के चरणों की हिफाजत के लिए अपने गलों में चरात मंदी की ज्योमाला डाले शमशान की आग और चत्ता की आतिश की तरह हमलावर हो रहे थे। जबकि उनके मुकाबले में मुसलमान लश्करी भी
आंधियों के झड़ों और रेत के गुजारों की हशर सामानियों की मुजाहरा बनते गोलों की तरह हमलावर हुए थे। दोनों तरफ के लश्करी टिड्डी दिल की तरह एक दूसरे पर फैलते हुए अपनी कार्रवाइयां कर रहे थे। कुछ देर तक तलवारों की छांव, तीरों की बारिश, बर्फ की तूफानों की तरह हमला होता रहा, यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने जोरदार हमले करते हुए भीमराज के लश्कर की अगली सफों का सफाया करते हुए भीमराज के लश्कर के वस्ती हिस्से का रुख करना शुरू कर दिया था। इससे पहले भीमराज जो अपने लश्कर के वस्ती हिस्से में था, चिल्ला चिल्ला कर जोरदार अंदाज में मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए अपने लश्कर को उबार रहा था। कुछ देर की मजीद जंग के बाद नक्शा एकदम बदलने लगा, इसलिए कि सामने के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने लश्कर को फैलाते हुए भीमराज के लश्कर के दाएं बाएं से भी हमलावर होना शुरू कर दिया। यूं एक तरह से भीमराज के लश्कर को से तरफा घेराव में महसूर करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद तीनों तरफ से भीमराज के लश्करियों का कत्लेआम शुरू हो गया। थोड़ी देर के मजीद जंग के बाद भीमराज के लश्करी पीछे हटना शुरू हो गए। पसपाई इख्तियार की, उसके बाद उन्हें शिकस्त हुई और वो भाग खड़े हुए। भीमराज की बदकिस्मती की उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह अजमेर की नवाह में भीमराज की लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई और उसके लश्करी अपनी जानें बचाने के खातिर इधर उधर बिखरे गए। उनमें से अक्सरियत ने अजमेर का रुख नहीं किया, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर उन्होंने अजमेर में जाकर महसूर होने की कोशिश की तो मुसलमान आगे बढ़कर अजमेर का मुहासरा करेंगे और शहर के अंदर जिस कदर लश्करी पनाह लेंगे सबको मौत की घाट उतार देंगे। लिहाजा अजमेर की तरफ जाने के बजाय उन्होंने मुख्तलिफ सिमतों में भाग जाने ही में अपनी आफियत समझी। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा को अजमेर की नवाह में शानदार फतह नसीब हुई। जंग के बाद कुछ देर तक ऐबा और कुतुबुद्दीन अपने जख्मियों की देखभाल करते रहे। जंग के दौरान जिन लश्करियों और सालारों ने अच्छे और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था उन्हें खूब नवाजा भी गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दूसरे सालार एक जगह बैठ गए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमराज को अपने सामने लाने का हुक्म दिया। ये हुक्म सुनते ही चंद मुस्लिम जवान ने भीमराज को पकड़ कर लाए और उसे कुतुबुद्दीन के सामने ला खड़ा किया। कुतुबुद्दीन थोड़ी देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा। उस मौके पर बेहद संजीदा और किसी कदर गुस्से की हालत में भी था। फिर उसने अपनी निगाहें राजा भीम की चेहरे पर गाड़ दी और खोलते हुए लहजे में कहा, भीमराज, जंग के दौरान तू अपने घोड़े पर सवार राजा इंदर बनकर अपने नारों के जोश और अपने तासुब के खंजरों से अपने लश्करों को जोश दिला रहा था। काले मौसमों की बासियों की तरह खोलते वहमों के आशुब खड़े करने की कोशिश कर रहा था। जरा मैदान जंग के दौरान जिस वक्त तू घोड़े पर सवार था अपनी इस हालत को भी निगाह में रख और अपनी इस हालत को भी देख जिस वक्त तू मेरे सामने खड़ा है। इस वक्त तेरी हालत जान सोच तबाहकारी की सी थी और अब तू गिरे हुए खुरों की दीवारों की मानिंद है। इस वक्त तू सुलगती आंखों वाले बयाबान की वहशतों की तरह था और अब तू उजाड़ वीरानों की इंतहा दरख्त से भी ज्यादा बेबस है। इस वक्त तू साहिलों को हिला देने वाले खूनी तलाकिन की सूरत इख्तियार करे हुए था। जरा अपनी हालत का जायजा ले। अब तू तपते रेगिस्तानों में सरकर्दा शिकस्त और रेख्त से भी अबतर हो चुका है। यहाँ तक कहने के बाद कुतुबुद्दीन रुका, फिर दोबारा उसे मुखातब करके कहने लगा, राजा भीम, तूने कई बार जहरीले नाग की तरह हमें डसने की कोशिश की। कुछ देर तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा भीम की तरफ देखता रहा और अपने जज्बात का इजहार करता रहा। आखिरकार उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इशारा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक सालार को बुलाया, सारा मामला उसे समझा। उस पर वो सालार कुछ मुस्लिम जवान के साथ भीमराज को पकड़कर एक तरफ ले गया और उसका सर कलम करके रख दिया। इस तरह अजमेर के नवाब में भीमराज का खात्मा कर दिया गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने लश्कर के साथ मैदान जंग से कूच किया, अजमेर शहर का रुख किया और फातेह के हैसियत से शहर में दाखिल हुए। अब अजमेर शहर को उन्होंने अपनी आलमदारी और सल्तनत में शामिल कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने लश्कर का पड़ाव शहर से बाहर क़याम किया था और दोनों शहर के नज़्म नुसुक में लग गए। एक रोज़ ऐबा अपनी लश्करगाह में मगरिब की नमाज अदा करने के बाद अपने खीमे की तरफ जाने लगा तो अचानक पीछे से किसी ने पुकारा, अमीर जरा रुकिए। ऐबा रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो पुकारने वाला रामदास था, वही रामदास जिसने राजकुमारी कुमार देवी को संग्राम और देवदास के चुंगल से निजात दी थी। इसकी तरफ गौर से देखते हुए ऐबा ने उसे मुखातब किया, मेरे अजीज, तो अपनी शक्ल और लिबास से हिंदू लगता है, बता तू कौन है? इसलिए कि इससे पहले मैं तेरे चेहरे से शनासा नहीं हूँ। रामदास करीब हुआ, दोनों हाथ जोड़कर वो बड़ी आजीजी से उसने सलाम किया, फिर कहने लगा, मेरा नाम रामदास है, मैं दरिया सरस्वती की तरफ से आया हूँ। मेरी बदबख्ती कि मैं जगह जगह आपको तलाश करता फिरा, पहले दिल्ली गया, वहां से पता चला आप बनारस में हैं। मेरी मजीद बदकिस्मती कि जब मैं बनारस पहुंचा तो आप दिल्ली की तरफ चले गए। मैं फिर दिल्ली आया लेकिन हालात फिर भी मेरे हक में न थे। वहां से पता चला कि आप अजमेर की तरफ गए हैं, लिहाजा अब मैं अजमेर की तरफ से आया हूँ और काफ़ी देर से वहाँ बैठा इंतजार करता रहा, इसलिए कि आप नमाज अदा कर रहे थे।
आपके कुछ लश्करों ने मेरी रहनुमाई की और वो लश्करी अभी मेरे पीछे ही पीछे आ रहे हैं। शायद वो मुझे मशकूक समझते हैं, इसी बिना पर शायद वो मुझ पर निगाह रखे हुए हैं। रामदास जब खामोश हुआ तब अयबा किस कदर हमदर्दी में उसे मुखातब करते हुए कहने लगा, तुम मुझे जगह जगह नगर नगर शहर शहर क्यों ढूंढते तलाश करते फिर रहे हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? रामदास बड़ी आजीजी में कहने लगा, अमीर, मैं आपसे राजकुमारी कुमार देवी से मुतालिक कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझ पर शक करेंगे, लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप अपने खीमे में चले। वहां बैठकर मैं आपसे राजकुमारी से मुतालिक तफसील से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपके जो मुस्लिम जवान मेरे पीछे आ रहे हैं उन्हें बेशक खीमे में लेकर चलिए। ताकि रामदास की बात काटते हुए किस कदर मुस्कुराते अयबा कहने लगा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ आओ। इसके साथ ही अयबा अपने खीमे की तरफ बढ़ा। रामदास भी चुपचाप उसके साथ हो लिया था। रामदास के साथ जब अयबा अपने खीमे में दाखिल हुआ तो रामदास और अयबा के पीछे पीछे अयबा के जो मुस्लिह जवान आ रहे थे वो भी खीमे तक आए और रामदास को लेकर अयबा के खीमे में दाखिल हुआ। तब वो लश्करी अयबा को सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इर्द गिर्द फहरा देने लगे। खीमे में दाखिल होने के बाद एक नशिस्त पर अयबा बढ़ गया। रामदास को उसने अपने सामने बैठने के लिए कहा, फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, अब कहो तुम राजकुमारी कुमार देवी से मुतालिक क्या कहना चाहते हो? पर तुम्हारी एक बात ने मुझे उलझन में डाल दिया है। तुमने मुझे रास्ते में बताया कि तुम दरियाए सरस्वती की तरफ से आए हो, जबकि राजकुमारी कुमार देवी नहरवाला की रहने वाली है। रास्ते में तुम्हारे इन अल्फाज ने तुम्हें मेरी निगाहों में मशकूक कर दिया था, लेकिन चूंकि मेरे मुस्लिम जवान मेरे पीछे पीछे थे, अगर इस मौके पर अल्फाज में मैं तुम पर शर्क का इजहार करता तो यकीनन तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसी बिना पर मैं खामोश रहा। अब बताओ असल मामला क्या है? जवाब में रामदास ने ओच की देवी के त्यौहार से देवदास और संग्राम के हाथों कुमार देवी के अगवा होने, उसे दरिया सरस्वती के किनारे किला नुमा हवेली में लाए जाने और फिर रामदास के साथ वहां से निकालने और मच्छरों की बस्ती में पनाह लेने की तफसील बता दी। सारे हालात सुनकर अयबा थोड़ी देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा। उसके बाद रामदास की तरफ देखते हुए कहने लगा, रामदास, पहले तो मुझे इस इंकिशाफ पर बेहद दुख और सदमा हुआ कि उषा देवी के त्यौहार से ओच की राजकुमारी कुमार देवी के मामूजात संग्राम ने उसे अगवा करके दरिया सरस्वती के किनारे पहुंचा दिया। मैं तुम्हारे किरदार से भी खुश हूँ कि तुमने उसे जहन्नम से निकालकर मच्छरों की बस्ती में पहुंचा दिया। तुम्हारी बातों से मैं ये अंदाजा भी लगा चुका हूँ कि शायद संग्राम और देवदास के हाथों कुमार देवी की इज्जत और आफियत महफूज रही है। अयबा के अल्फाज पर रामदास झट से बोल पड़ा, मालिक, आपका अंदाजा दुरुस्त है। कुमार देवी ने अपनी लाज, अपनी इज्जत की हिफाजत खूब की। उसने फैसला किया हुआ था कि अगर उस कैद के दौरान संग्राम या देवदास में से किसी ने भी उसे बेआबरू करना चाहा तो खुद मर जाएगी या बेआबरू करने वाले का खात्मा करके रख देगी। रामदास जब खामोश हुआ तब कुछ सोचते हुए अयबा ने फिर उसे मुखातब किया, रामदास, मुझे कुमार देवी की इस हालत पर बड़ा दुख और सदमा हुआ, लेकिन उसे वहां से निजात दिलाने के लिए तुम्हें नहरवाला का रुख करना चाहिए था। उसके बाप और भाई को उसकी इत्तला करनी चाहिए थी ताकि वो कुमार देवी को वहां से रिहा करने के साथ साथ देवदास और संग्राम को भी उनके लिए इबरतनाक सजा दे। अयबा जब खामोश हुआ तब दुख भरा लंबा सांस लेते हुए रामदास बोल उठा, मालिक, मैं तो पहले ही आपको तलाश करते करते थक चुका हूँ। फिर नहरवाला कितनी दूर है, मैं वहां तन्हा सफर ही नहीं कर सकता था। और फिर कुमार देवी के हालात मैं आपको जिक्र बार बार करता आता था। और जिस वक्त मैं अपनी आपकी तरफ से रवाना हुआ था उस वक्त राजकुमारी कुमार देवी ने भी मेरी इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया कि वहां से निकालने के लिए आपकी मदद हासिल की जाए। रामदास के खामोश होने पर फिर अयबा बोल पड़ा, पर वो तो मुझसे इंतहा दर्जे की नफरत करती थी, मेरा नाम सुनना पसंद नहीं करती थी, और साथ ही मुझे तक ये भी खबर पहुंच चुकी है कि वो अपने राज मंदिर में गई और वहां जाकर उसने सौगंध खाई कि वो उस वक्त तक शादी नहीं करेगी जब तक मुझे कत्ल नहीं करेगी। उसके बावजूद उसने तुम्हें मेरी तरफ कैसे रवाना कर दिया? यहाँ तक कहने के बाद अयबा रुका, फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, बहरहाल मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। हमारा लश्कर चंद दिन तक यहाँ क़याम करेगा, तुम भी कुछ रोज यहाँ क़याम करके आराम करो। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ मुस्लिह जवान रवाना कर दूंगा जो राजकुमारी कुमार देवी को वहां से निकालकर बहिफाजत नहरवाला पहुंचा देंगे। साथ ही मेरे कुछ मुस्लिह जवान देवदास और संग्राम को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जो मुस्लिह जवान मैं तुम्हारे साथ भेजूंगा उन्हें मैं ये अहकामात भी जारी करूंगा कि संग्राम और देवदास को पकड़कर राजकुमारी के साथ उसके बाप की तरफ नहरवाला ले जाए, ताकि नहरवाला के राजा भीम बेटी को अगवा करने वालों का जो चाहे सजा दे। यहाँ तक कहने के बाद अयबा थोड़ी देर के लिए रुका, फिर रामदास की तरफ देखते हुए कह रहा था, रामदास, इस मौके पर मेरे जहन में एक और तजवीज़ भी है, पता नहीं तुम इसे इत्तेफाक करते हो या नहीं। रामदास ने बड़ी ममनूयत में अयबा की तरफ देखा, फिर कहने लगा, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं, मैं क्यों आपकी तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करूंगा। जवाब में अयबा ने कुछ सोचा, फिर रामदास को मुखातब करके कहने लगा, रामदास, मैं चाहता हूं कि तुम 1-2 दिन यहाँ क़याम करो
और आराम करके वापस चले जाओ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे जाने के बाद कुछ मुसलिह जवान को दरिया सरस्वती की तरफ रवाना करूँ। ये भी मुमकिन है जब मेरे आदमी कुमार देवी को यहाँ से निकालने के लिए जाए तो देवदास और संग्राम भी अपने मुसलिह जवान को इकट्ठा करके हमारे आदमी पर हमलावर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसके बैक वक्त 3 नुकसानात सामने आएंगे। अव्वल ये कि जो आदमी यहाँ से कुमार देवी को निकालने के लिए भेजूंगा उनकी जानें खतरे में पड़ जाएंगी। दुआ में कि राजकुमारी भी फिर देवदास और संग्राम की गिरफ्त में चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों उसे कहीं ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ फिर राजकुमारी का नाम और निशान नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंतकामी कार्रवाई करते हुए उसका खात्मा भी कर सकते हैं। सुबह में कि जिन माहीगीरों की बस्ती में इस वक्त कुमार देवी ने पनाह ले रखी है, माहीगीरों की वो बस्ती भी संग्राम और देवदास और उनके मुसलिह जवानों की अजियत का शिकार हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। इस वक्त जो मेरे जहन में तजवीज़ आती है वो यूं कि पहले तुम अकेले वापस चले जाओ। मेरे मुसलिह जवान को तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए। इसका भी एक मनफी पहलू है, वो इस तरह कि अगर संग्राम और देवदास को खबर हो गई कि राजकुमारी कुमार देवी को वहां से निकालने के लिए तुम हमारे मुसलिह जवान लेकर गए हो तो उन पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस हवेली से कुमार देवी के फरार के जिम्मेदार भी तुम हो, लिहाजा वो तुम्हारा खात्मा करने की कोशिश करेंगे और मैं ऐसा भी नहीं चाहता। 2 दिन के बाद तुम अकेले लौट जाना। मजीद 2 दिन का वक्फा डालकर मेरे मुसलिह जवान यहाँ से तुम्हारी बस्ती की तरफ चले आएंगे। पहले वो देवदास और संग्राम और उनके मुसलिह जवान का मुहासरा करके उन्हें गिरफ्तार करेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद रात के वक्त कुमार देवी को माहीगीरों की बस्ती से निकाला जाएगा। ये काम दिन में नहीं किया जाएगा। इस तरह माहीगीरों की बस्ती पर भी हरफी गिरी आएगी। मैं चाहता हूँ कि जब वो पहले देवदास और संग्राम को गिरफ्तार हो जाएं, उसके बाद रात की तारीकी में कुमार देवी को भी वहां से निकालकर मुसलिह जवानों की सरकर्दगी में तीनों को नहरवाला की तरफ भिजवा दिया जाए। इसके बाद नहरवाला के राजा के सामने कुमार देवी खुद अपने हालात पेश करेगी और नहरवाला का राजा जो चाहे देवदास और संग्राम से सुलूक करे। अब बोलो तुम्हारे सिलसिले में क्या ख्यालात है। ऐबा जब खामोश हुआ तो जवाब में रामदास कुछ देर सोचता रहा, फिर ऐबा की तरफ देखा और कहने लगा, जो कुछ आपने कहा मैं इससे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। मैं समझता हूँ आपकी तजवीज़ पर अमल करने से न सिर्फ मैं बल्कि कुमार देवी भी महफूज रहेगी। इसके अलावा माहीगीरों की बस्ती में देवदास संग्राम और उनके साथियों के इंतकाम से बची रहेगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने खीमे में बैठाकर सारी तफसील मुझसे सुनी और मेरी इस्तिदाद पर आप कुमार देवी की मदद के लिए तैयार हो गए। हालांकि इससे पहले जो तफसील मुझ तक पहुंची उसके मुताबिक कुमार देवी ने आपसे अच्छा सलूक नहीं किया था और अब वो अपने इस सलूक से पछता रही है। रामदास के इस जवाब पर ऐबा खुश हो गया। उसके बाद उसने किसी को आवाज़ देकर बुलाया। इस पुकार के जवाब में मुसलिह जवान खीमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और उसे मुखातब करके ऐबा कहने लगा, ये हमारा मेहमान है, इसके रहने और खाने का इंतजाम करो। 2 दिन ये यहाँ क़याम करेगा, इसके बाद यहाँ से रुखसत हो जाएगा। साथ ही रामदास की तरफ देखते हुए ऐबा फिर कहने लगा, रामदास रुखसत होने से पहले मुझसे मिल कर जाना, मैं फिर इस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करूंगा। अब तुम जाओ, जाकर आराम करो। इसके साथ ही रामदास उठा और वो दरवाजे पर नमूदार होने वाले ऐबा का मुसलिह जवान रामदास को अपने साथ ले गया। 2 दिन बाद रामदास दरिया सरस्वती की तरफ चला गया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने लश्कर को लेकर नहरवाला की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। एक रोज नहरवाला का राजा भीमदेव और उसका बेटा रामदेव दोनों बड़ी तेजी से राजमहल में दाखिल हुए। उस वक्त रामदेव की माता राजकवल महल में के सामने बगीचा नुमा सहन में टहल रही थी। जब उसने दोनों को तेजी से सुकूनती हिस्से की तरफ आते देखा तो उनकी तरफ बढ़ी। जब वो करीब आई तो कुछ देर तक उनके चेहरों की तासुरात का जायजा लेती रही, फिर कहने लगी, तुम दोनों बाप बेटे की हालत से लगता है कि कुछ होने वाला है। भीमदेव कुछ कहना ही चाहता था कि उससे पहले रामदेव बोल उठा, माता होने वाला नहीं हो चुका है। मैं इससे पहले जिन खतरात का इजहार किया करता था आज वो अमली सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। मुसलमानों का लश्कर हम पर हमलावर होने के लिए बड़ी तेजी से हमारी तरफ पेशकदमी कर रहा है। ये खबर अभी थोड़ी देर पहले हमारे मुखबिरों ने लेकर आई है। वो ये नहीं बता सके कि मुसलमानों के लश्कर की कमांडरी खुद सुल्तान कर रहा है या कोई और, लेकिन मुसलमानों का लश्कर बहरहाल नहरवाला पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है और मैं पिताजी इसलिए आए हैं ताकि अपनी तैयारी करके मुस्तकिर की तरफ जाए और लश्कर को लेकर शहर से निकले। हमने नहरवाला से दूर जरा खुले मैदानों में मुसलमानों का मुकाबला करना है और देखिए इस जंग के क्या नतीजे सामने आते हैं, इसलिए कि मुसलमान हर सूरत में हमसे इंतकाम लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद रामदेव रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, माता मैं जानता हूँ मेरी सारी गुफ्तगू का पिताजी बुरा मानेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि अब मुसलमान मुख्तलिफ अंदाज में हम पर हमलावर होने के लिए आ रहे हैं। पहले उन्होंने सिर्फ मुल्तान और ओज को फतह करने के बाद हमारा रुख किया था और यहाँ के पूरे महल और वक़ूअ और हालात से वाकिफ नहीं थे और फिर उनके लश्करी भी उनकी सरजमीनों से अनजान थे, लेकिन अब लगातार कई मार्कों में वो मकामी लश्करों को शिकस्त दे चुके हैं। पेशावर से लेकर कुनूज तक के सारे इलाकों को फतह करते हुए वो उस पर कब्जा भी कर चुके हैं। मैं इस मौजू पर भी मशवरा देता हूँ कि मुसलमानों के सुल्तान से सुलह कर लेना चाहिए।
लेकिन हमने सुलह के बजाय हिंदुस्तान के सारे राजाओं को अपनी मदद के लिए बुलाया और मुसलमानों को पसपा करके हम एक तरह से बड़े खुश और मुतमईन हो गए। अब जो मुसलमान हमारे इलाकों की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा इत्मीनान और हमारी वो खुशी बिल्कुल आर्जी थी। बहरहाल माता, मैं और पिताजी अपनी तैयारी करने के लिए आए हैं और तैयारी करने के बाद हम वापस चले जाएंगे। जब तक रामदेव बोलता रहा, उसके बाद भीमदेव ने जवाब में एक लफ्ज भी नहीं लगाया और उसकी बातों से मुत्तफिक था। ताहम राज कंवल कुछ परेशान फिक्रमंद थी। फिर भीमदेव, रामदेव दोनों अपना जंगी लिबास पहनने के बाद अस्तबल की तरफ गए। घोड़ों पर सवार हुए, उसके बाद वो राजमहल से निकल गए थे। थोड़ी देर बाद भीमदेव, रामदेव अपने बड़े बेटे और सरगर्दा सालारों के साथ अपने लश्कर को लेकर नहरवाला से कूच कर गया था। अपने मुखबिरों की रहनुमाई में भीमदेव, रामदेव और उनके सालारों ने अपने लश्कर के साथ उस शाहरा पर पड़ाव कर लिया था जिस शाहरा की तरफ मुखबिरों ने इशारा कर दिया था कि मुसलमानों का लश्कर इस पर सफर करते हुए नहरवाला की तरफ बढ़ रहा है। जिस रोज राजा भीमदेव ने अपने लश्कर का पड़ाव किया, उससे दूसरे रोज कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबा और उनके सालार भी अपने लश्कर को लेकर वहां पहुंच गए और बिल्कुल भीमदेव के लश्कर के सामने उन्होंने पड़ाव किया। एक दिन और एक रात दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव किए रहे और साथ ही मुहतात भी रहे कि कोई किसी पर शबखुन न मारे। इसके बाद दोनों लश्करियों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने अपने लश्कर में जंग के तबल और नक्कारे पीट दिए थे। गोया लश्कर अब एक दूसरे से टकराने के लिए तैयारियां करने लगे थे। भीमदेव, रामदेव और उनके बड़े बड़े सालार अपने लश्कर के सामने घोड़ों को इधर उधर दौड़ाते हुए अपने लश्कर की सफें दुरुस्त कर रहे थे। यही हालत उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबा और दूसरे सालारों की भी थी। वो भी अपने लश्कर की सफों को इस्तिवार करने में मसरूफ थे। जंग की इब्तिदा नहरवाला के राजा भीमदेव ने की। अपने लश्कर को आगे बढ़ाते हुए अपनी आरज़ुओं को सजाते, अपनी खुश गुमानियों को लभाते, अपनी ख्वाहिशों के अहद को निभाते, अपने अंदर की जुस्तजू को छुपाते और धोल की चादर में लपेटे हौलनाक की तरह हमलावर हो गया था। दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबा ने भी निगाहों को कहर आलू, अकल को मजहूल, जुबान को बेमफहूम कर देने की तरह रद्द अमल का इजहार किया। फिर वो भी राजा भीमदेव के लश्कर पर तूफान की तरह टूट पड़े थे। नहरवाला के नवाह में दोनों लश्करियों के आपस में टकराने से ऐसा समा बन गया था जैसे फिरौन की बस्तियों पर आसाए कलीम का नुज़ूल होना शुरू हो गया हो, या नफ़रतों के बदलते रूप में उलझन भरी महरूमिया रूह और कल्ब को मुस्तकीर में नए मौसमों के अजाब उठ खड़े हुए हों। दोनों तरफ के लश्करी बुरी तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे और हर कोई अपनी कामयाबी और अपनी फतह मंदी को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद में लग गया था। भीमदेव और उसके सालार जानते थे कि इससे पहले नहरवाला में चूंकि उनके हाथों मुसलमानों को पसपाई इख्तियार करना पड़ी थी, लिहाजा मुसलमान हर सूरत में अपनी इस हसीमत और पसपाई का इंतकाम ले रहे हैं। इसी बिना पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह एक बार फिर मुसलमानों के कदम आगे ना बढ़ने पाए। भीमदेव और उसके सालार चिल्ला चिल्ला कर अपने लश्करों के जज्बों और उनके वलवलों को उभार रहे थे और उनके लश्करी भी रद्द अमल का इजहार करते हुए अदब राब्त और जब्त से नाशना बगावतों की तहरीकों की तरह हमलावर हो गए थे। वो तैयार किए हुए थे कि हर सूरत में अपनी कामयाबी की मोहर मुस्बित करके रहेंगे, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी सिमत से अपनी कामयाबी की कोई झलक तक दिखाई ना दे रही थी। इसलिए कि दूसरी तरफ से मुसलमान लश्करी भी तकबीरों के साए में अपने सरों पर कफन बांधकर जहन और दिल की महराबियों में बुरुफ के जिंदा रोशनी की तरह इधर उधर हरकत कर रहे थे। वो नारे बुलंद करते हुए तकबीर की फिजाओं की गहरी बाज गश्त में राजा भीमदेव के लश्कर पर सुकूत बेकरां की गिर्द में लावा बनकर खोल उड़ते फना और तगयीर की भंवर की तरह हमलावर हो गए थे। कुछ देर की मजीद जंग के बाद राजा भीमदेव ने साफ तौर पर अंदाजा लगा लिया था कि इसके लश्करी मुसलमानों के हमलों के सामने पर्वतों के अंधेरों की तरह सिमटने और मौत के तिलातिम से रस्सी कशी करते अनासिर की तरह पसपाई इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भीमदेव ने वो समा भी देखा जब उसके लश्करियों में थोड़ी सी पसपाई दिखाई दी, तो मुसलमान लश्करियों ने जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की। शायद ये लश्करियों का एक दूसरे को पैगाम था कि अब पूरी ताकत और कुव्वत से दुश्मन पर हमलावर होकर और उस पर आखिरी जब लगाते हुए अपनी फतह को यकीनी बनाना है। और फिर ऐसा ही हुआ। मुसलमान लश्करियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबा और दूसरे सालारों की सरकर्दगी में इस जोर से हमला शुरू किया कि उन्होंने अपने उन हमलों के दौरान भीमदेव के लश्कर की अगली सफ़ें को काटते हुए उनके लश्कर के वस्ती हिस्से में मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल देखते हुए भीमदेव और उसके सालार अपनी शिकस्त और अपने सामने रक्स करते हुए देख लिया था। लिहाजा अपनी जानें बचाने की खातिर भीमदेव ने शिकस्त और पसपाई के नक्कारे भजवा दिए। उन नक्कारों की गूंज के साथ ही भीमदेव शिकस्त उठाकर भाग खड़ा हुआ
और नहर वाला में दाखिल होकर किला बंद होकर बैठ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबा और उसके सालारों ने सबसे पहले दुश्मन के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा किया। अपने जख्मी होने वाले लश्करियों की देखभाल की लश्कर के लिए खीमे नस्ब कर दिए गए। लश्करियों को आराम का हुक्म दे दिया गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा सालारों के साथ एक जगह बैठ गए। कुतुबुद्दीन ने अपने सालारों को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज साथियों, सबसे पहले तो मैं तुम्हें और अपने सारे सालारों को, सारे लश्करियों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमने नहरवाला के राजा भीमदेव के खिलाफ शानदार कामयाबी और एक सुनहरी फतह हासिल की है। ये वही नहरवाला है जहाँ इससे पहले एक बार हमें पसपा होना पड़ा था और हमने अपनी इस पसपाई का खूब इंतकाम लिया। अब दुश्मन के पड़ाव की हर चीज पर तो हमारा कब्जा होगा। और जैसा कि दुश्मन के ताक़ुब करने वाले मुखबिरों ने बताया कि राजा भीमदेव नहरवाला में महसूर हो गया है। मुखबिर ये भी कह चुके हैं कि नहरवाला की फसील इंतहाई दर्जे की मुस्तहकम और मजबूत और बुलंद है। अब ये बताओ कि दुश्मन को इन मैदानों में शिकस्त देने के बाद हमें किस रद्द अमल का इजहार करना चाहिए और हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। इस मौके पर ऐबा ने अपने सालारों की तरफ देखा, उन्हें मुखातब करके कहने लगा, आप सब लोगों में से कोई बोलना चाहे तो बोले, वरना मुझे इजाजत दे कि मैं अपनी तरफ से एक तजवीज़ पेश करूं। ऐबा के इन अल्फाज के जवाब में उन सारे सालारों ने एक ज़बान होकर यही कहा, पहले ऐबा अपनी तजवीज़ पेश करे। इस पर ऐबा सबको मुखातब करते हुए कह रहा था, खुदावंद कुद्दूस का शुक्र है कि इन मैदानों में हमने भीमदेव को शिकस्त दी है और वो अपनी फसील बंद शहर में महसूर हो गया है। अब जहाँ तक हमारी हालत का ताल्लुक है, हमारे पास मिंजिकों के अलावा कोई और भी फसील और किला शिकन औजार नहीं है। फिर यहाँ क़याम के दौरान हमारे पास रसद और ज़रूरियात की दीगर ज़िंदगी का कहत भी पड़ सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा, सबसे पहले नहरवाला के गिरदो नवाह के इलाकों पर हमलावर होकर अपने लश्कर के लिए महीनों तक की ज़रूरियात की अशिया भर लेनी चाहिए। अभी तक नहरवाला के राजा भीमदेव ने इर्द गिर्द के इलाकों का हमारे खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया, लिहाजा इर्द गिर्द के इलाकों पर हमलावर होकर कहीं धूंस धमकी, कहीं हमलावर होने का खौफ दिलाकर अपने लिए अनाज और ज़रूरियात की दीगर चीज़ें जमा कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद फिर हालात को सामने रखते हुए देखेंगे कि हमें नहरवाला पर कैसे हमलावर होना चाहिए। नहरवाला को फतह करने के लिए हमें यहाँ क़याम के दौरान मिंजिकों की भी फसील को गिराते हुए उस शहर पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन ये उस वक्त जिस वक्त हम अपने लिए काफ़ी गल्ला और खुराक का दूसरा सामान जमा कर लेंगे। इसलिए कि अगर नहरवाला का मुहासरा तूल पकड़ गया तो हमारे पास गल्ले और दूसरी ज़रूरियात के अशिया की कमी नहीं होनी चाहिए और फिर मिंजिकों बनाते हुए भी कुछ वक्त लगेगा। सबसे पहले हमें दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, एक लश्कर के लिए गल्ला, दूसरा खुराक के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों, और ये सारी चीज़ें हमें नहरवाला की नवाह से वाफिर मकदार में मिल सकती है, इसलिए कि ये इलाका पहले से मेरा जाना पहचाना है। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा जब खामोश हुआ तब कुतुबुद्दीन ने अपने बाकी सालारों की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज साथियों, ऐबा ने जो कुछ कहना था कह चुका। अब तुम में से अगर कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहे तो हम उसे बगौर सुनेंगे। जवाब में सारे सालारों ने पहले आपस में मशवरा किया। फिर उनमें से एक अपनी बाकी साथियों की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा था, हम में से किसी ने कुछ नहीं कहना। हमारे ख्याल के मुताबिक जो तजवीज़ ऐबा ने पेश की है वो सबसे बेहतर और काबिल अमल है। इसी पर अमल करते हुए हम नहरवाला को फतह कर सकते हैं। हमें पहले अपनी ज़रूरत का गल्ला और जानवर जमा कर लेनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी मुस्कुराते हुए इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। 2 रोज़ तक लश्करियों को मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया गया। उसके बाद लश्कर का एक हिस्सा तो पड़ाव ही में रहा ताकि कहीं नहरवाला के राजा भीमदेव अचानक निकलकर हमलावर ना होने पाए, अपनी शिकस्त को फतह का रंग देने की कोशिश ना करे। जबकि लश्कर के एक हिस्से की छोटी छोटी टोलियां बना ली गई और मुख्तलिफ सालारों की कमांडरी में दिया गया और ये टोलियां नहरवाला के अतराफ में फैलकर लश्कर के लिए गल्ला, जानवर और दूसरी अशिया जमा करने लगी। इस तरह नहरवाला को फतह करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने लश्कर के लिए महीनों की ज़रूरियात का सामान जमा करना शुरू कर दिया था। गल्ला और जानवर जमा करने की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा नहरवाला पर आखिरी ज़रब लगाने के लिए अपनी तैयारियां करने लगे थे। इतनी देर में दहलीज से कुछ मुखबिर आए और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा को इत्तला दी कि उनकी गैर मौजूदगी में कुलियार और बियाना शहरों के राजपूत मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आना चाहते हैं और उस मकसद के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है। आने वाले मुखबिरों ने यह भी बताया कि अब तक मुसलमानों के खिलाफ मकामी राजाओं की जिस कदर जंगी हुई थी, इन जंगों की शिकस्त खुर्दा उनासुर इन 2 शहरों में जमा होकर अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा कर रहे हैं। ये खबर सुनकर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने नहरवाला पर हमलावर होकर उसे फतह करने की अपनी ममलिकत में शामिल करने का इरादा मुलतवी कर दिया। ताहम वो इस बात पर भी खुश थे कि उन्होंने नहरवाला के राजा भीमदेव को बदतरीन शिकस्त देकर उनसे इंतकाम ले लिया है। ताहम नहरवाला की इस मुहिम को इल्तवा में डालते हुए कुलियार और बियाना के राजपूतों से निपटने की खातिर कुतुबुद्दीन और ऐबा अपने लश्कर के साथ वापस दहली का रुख कर रहे थे। दूसरी तरफ कुलियार और बियाना शहरों में राजपूतों की इज्तिमा की खबरें गजनी में सुल्तान शहाबुद्दीन तक पहुंच गई।
اس لیے کہ سلطان مخبر بڑی برق رفتاری سے ہندوستان کی پل پل کی خبریں سلطان تک پہنچاتے تھے۔ سلطان کو جب خبر ہوئی کہ راجپوتوں کی قوتیں کلیار اور بیابان شہر میں جمع ہو کر مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، تب سلطان شہاب الدین غوری غزنی شہر سے نکلا اور بڑی برق رفتاری سے آندھی اور طوفانوں کی طرح اس نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ایک روز دریائے سرسوتی کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں بھگوان داس کے پاس راجکماری کمار دیوی اور کرن کماری رات کے کھانے کے لیے برتن لگانے کے لیے تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس وقت مکان کے سامنے والے کمرے میں بھگوان داس اور اس کی بیوی راج سندری بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ کمار دیوی اور کرن کماری کھانے کے برتن لانے لگی تھی۔ دستک کی آواز سن کر سب چونک گئے تھے، جبکہ کمار دیوی بدک اٹھی تھی اور بھاگ کر وہ توشک خانے کی طرف گئی اور لحافوں کے اندر جا کر چھپ گئی۔ شاید کمار دیوی اب ان چیزوں کی عادی ہو چکی تھی، جب بھی بھگوان داس کی یہاں کوئی آتا یا دروازے پر دستک ہوتی تو وہ توشک خانے میں جا کر چھپ جاتی تھی۔ گھر کا دروازہ چونکہ ہر وقت بند رکھ کر اندر سے زنجیر لگائی جاتی تھی، لہٰذا ابھی تک کسی کو خبر نہ ہوئی تھی کہ مہر والا کی راجکماری بھگوان داس کے یہاں پناہ لیے رکھی ہے۔ دروازے پر دستک ہونے والی دستک کے جواب میں کس قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے راج سندری نے اپنے شوہر بھگوان داس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، اس وقت دروازے پر دستک کون دے سکتا ہے؟ کرن کماری بھی پریشان ہو گئی تھی، بار بار توشک خانے کی طرف دیکھتی تھی کہ جہاں کمار دیوی جا کر چھپ گئی تھی۔ بھگوان داس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ باہر سے ہلکی دھیمے مدھم سے آواز ہے، بھگوان داس میرے محترم دروازہ کھولو، میں رامداس ہوں۔ بھگوان داس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، آگے بڑھ کر اس نے دروازے کی زنجیر اتار دی، دروازہ کھولا، اس کے ساتھ ہی رامداس اندر داخل ہوا۔ بھگوان داس نے پہلے کی طرح دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی، پھر رامداس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والے کمرے کی طرف چلا گیا، ساتھ ہی سرگوشی کے انداز میں اپنی بیٹی کرن کماری سے کہنے لگا، راجکماری سے کہو توشک خانے سے نکل کر ادھر آ جائے۔ کرن کماری اور اس کی ماں راج سندری دونوں اب مطمئن ہو گئی تھی کہ کرن کماری توشک خانے کی طرف گئی اور وہاں سے کمار دیوی کو نکال کر اپنے ساتھ لے آئی۔ رامداس کو دیکھتے ہی کمار دیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، بڑے شوق کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ کر وہ رامداس کے قریب ہی بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، بابا اب آپ آئے ہیں تو مجھے کوئی اچھی خبر سنائیے گا۔ جواب میں رامداس مسکرایا کہنے لگا، بیٹی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے اچھی خبر ہی لایا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے رامداس کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ شکوہ بھری آواز میں کمار دیوی پھر بول اٹھی، بابا آپ نے اس کام کے لیے کئی ہفتے لگا دیے اور آپ کے انتظار میں نے جو ہفتے گزارے ہیں، میں سمجھتی ہوں میری زندگی میں سما سب سے زیادہ پرخیز ہوگا۔ آپ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ جواب میں رامداس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، بیٹی کچھ نہ پوچھو مجھ پر کیا بیتی۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں دہلی کی طرف گیا، وہاں سے پتہ چلا شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ کنج گیا، اس لیے کہ کنج کے راجہ جے چند اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا رشتہ دار بھیم راج سلطان کے خلاف جنگ آزما ہونے والا تھا اور دونوں کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کے سلطان نے کنج پر قبضہ کر لیا۔ میں جب کنج پہنچا تو پتہ چلا مسلمانوں کا لشکر بنارس جا چکا ہے۔ اب میری بدقسمتی کہ میں بنارس کی طرف روانہ ہوا، جب بنارس پہنچا تو وہاں سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر دہلی کی طرف چلا گیا ہے۔ میری بدقسمتی راستے میں کہیں میرا ٹکراؤ مسلمانوں کے لشکر سے نہیں ہوا، اس لیے کہ میں دریائے گنگا کے کنارے کنارے بنارس کی طرف گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کا لشکر بنارس سے نکل کر دریائے جمنا کے کنارے کنارے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ اسی بنا پر راستے میں میرا اور مسلمانوں کے لشکر کا کہیں آمنا سامنا نہ ہو سکا، جس کی بنا پر میں بنارس جا پہنچا۔ بنارس سے جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر تو دہلی جا چکا ہے، تب میں دم لیے بغیر پلٹا اور دہلی کا رخ کیا، لیکن دہلی پہنچ کر بھی میری بدقسمتی کی کمی نہ آئی تھی، نہ اس کا خاتمہ ہوا تھا، اس لیے کہ دہلی پہنچ کر پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر تو اب اجمیر جا چکا ہے، لیکن میں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا، دہلی سے نکل کر منزل پر منزل مارتا ہوا اجمیر جا پہنچا اور اجمیر کے نواح میں پھر میری ملاقات مسلمانوں کے لشکر میں ایبا سے ہوئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رامداس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے راجکماری کمار دیوی بول اٹھی، پھر آپ نے جب میرے حالات ایبا کو بتائے تو اس نے کیا کہا؟ جواب میں رامداس مسکرایا کہنے لگا، بیٹا میں نے تیرے حالات پوری تفصیل سے ایبا سے کہہ دیے، تمہارے اس طرح اغوا ہونے پر، یہاں بستی میں رہنے پر اس نے بڑا دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کمار دیوی پھر اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی، صرف دکھ اور افسوس کا اظہار ہی کیا، یہاں سے مجھے نکالنے کا کوئی بندوبست بھی کیا؟ کمار دیوی کے سوال پر رامداس نے اس موضوع پر ایبا سے ہونے والی گفتگو پوری تفصیل کے ساتھ کہہ دی۔ رامداس جب خاموش ہوا تب کمار دیوی کسی قدر پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ بھگوان داس، کرن کماری، راج سندری، رامداس چاروں بڑے غور و فکر مند سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس موقع پر رامداس نے پھر مخاطب کیا، بیٹی کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں میری اس گفتگو سے تو پریشان اور فکر مند اور الجھی سی گئی ہے، کیا تو اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہے جو میرے اور ایبا کے درمیان ہوئی ہے؟
जवाब में कुमार देवी चौंकी, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, मैं समझती हूँ मैं इसकी नजरों में गिर गई हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से अपने आप को इसकी निगाहों में गिरा लिया है। बाबा, उसे किसी ने यह बता दिया कि मैंने राज मंदिर में जाकर सौगंध खाई थी कि जब तक उसे खुद कत्ल नहीं करूंगी उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी। वो क्या ये सोचता होगा कि वो लड़की जिसने मंदिर में जाकर उसके कत्ल की सौगंध खाई थी अब वही लड़की ओपाशों और बदमाशों के खिलाफ उससे मदद की तलबगार है? क्या मेरी इस रवैये, मेरी इस मांग पर उसने मुझे एक मुतलवन मिजाज, अहमक और बेवकूफ किस्म की लड़की ख्याल ना किया होगा? यहाँ तक कहने के बाद थोड़ी देर के लिए कुमार देवी फिर खामोश रही, अनजान सोचों में उलझी रही। उसके बाद दोबारा वो सबकी तरफ देखते हुए कहने लगी, न जाने उसे किसने बता दिया था कि मैंने राज मंदिर में जाकर सौगंध खाई थी। बाबा, आपने तो कहीं दौरान गुफ्तगू उससे मेरी इस सौगंध का जिक्र तो नहीं कह दिया? जवाब में रामदास मुस्कुरा कहने लगा, बेटा तुम किस किस्म की गुफ्तगू करती हो? इस बात का इंकिशाफ तो खुद आइबा ने मुझसे किया। मैंने तो इस मौजू पर कोई बात छेड़ी ही नहीं थी। गो जिस वक्त मैं तुम्हारे पास खाना लेकर आता था तो मुझे अपनी जिंदगी की सारी तफसील बताती थी, लेकिन मैंने कभी किसी से इसका इजहार नहीं किया। बेटा, मैं काफी देर इसके पास बैठा रहा। वो बड़ा हंसमुख इंसान है, मेरे साथ बड़ी खुश उसलूबी से गुफ्तगू करता रहा और जिस रोज मैंने वहां से रुखसत होना था उस वक्त भी उसने मुझे बुलाया। काफी देर मेरे पास बैठा रहा, मुस्कुराते हुए बातें करता रहा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि तुम उसकी निगाहों में गिरी नहीं हो। इसके अलावा मुलाकात के दौरान मेरी बेटी, उसने मेरे सामने एक भी लफ्ज ऐसा नहीं कहा जो तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारी तौहीन का बाइस बनता। उसने तुम्हारी जात से मुताल्लिक गुफ्तगू ही नहीं की। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अच्छा इंसान है। मेरी उसने बेहतरीन देखभाल की, अपने लश्कर में ठहराया, कुछ लोगों को मेरी खिदमत पर मुकर्रर किया। इसके अलावा यहाँ तक कहते कहते रामदास को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए राजकुमारी कहने लगी, मैं जानती हूँ ऐबा, जहाँ वहशतों की सरासिमी और हसरतों की तिलातिम दुख के सफर की तरह दिले और जुरतमंद है। अजियतनाक रातों और खामोशी की झील में हलचल बर्पा कर देने वाले वक्त के काले कोसों की कहरमानित की तरह दिलेर और शुजा है। वहाँ वो सावन की तरह खुशकुन उजालों की शबनम जैसा नरम, रुजो जमालियत की हकीकत और हुर्मत और गमखारी जैसा वफादार भी है। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी फिर मौजू बदलते हुए कहने लगी, रामदास, मेरे मोहतरम, ऐबा ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अगर तुम्हारे कहने पर वो अपने मुसलिह जवान तुम्हारे साथ कर देना ताकि वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए, तब मैं उसके साथ जाने से इनकार नहीं कर देती, इसलिए कि अब मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकती। हाँ, अगर ऐबा खुद आता तो मैं उसके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती, इसलिए कि दुनिया में इस वक्त वाहिद वो शख्स है जिस पर मैं अपनी इज्जत, अपनी हुर्मत, अपनी अजमत के मामले इत्मीनान और भरोसा कर सकती हूँ। बहरहाल उसने जो फैसला किया, पहले वो अपने आदमियों के जरिए देवदास और संग्राम को गिरफ्तार कराएगा और उसकी गिरफ्तारी के बाद वो मुझे यहाँ से निकालेगा। और उसने जो ये कहा कि रात में मुझे यहाँ से निकालेगा, तो रामदास ये बात उसकी इंतहा दर्जे की अक्लमंदी की गमगुजारी करती है। दिन के वक्त निकाल कर वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मैंने यहाँ पनाह ले रखी थी। लिहाजा ये मामला मेरे मोहतरम भगवान दास के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा अब जब भी ऐबा के आदमी मुझे यहाँ से निकालने के लिए आएंगे तो मैं रात के वक्त यहाँ से कूच कर जाऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे बाद इस घर के लिए कोई परेशानी उठ खड़ी हो। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी फिर रुकी। उसके बाद दोबारा पहले की निस्बत ज्यादा तासुफ और दुख भरे अंदाज में कहने लगी, ऐबा के मामले में मुझसे एक और बहुत बड़ी गलती हुई। रामदास, मेरे मोहतरम, जिस वक्त आप यहाँ से चले गए उसके बाद मैं बड़ी पछताई कि मैं ऐबा की बीवी के मरने पर दुख का इजहार तक ना कर सकी। जब आप यहाँ से रुखसत हुए तो मुझे चाहिए था कि मैं आपको बताती कि मेरी तरफ से उससे उसकी बीवी के मारे जाने पर दुख और अफसोस का इजहार किया जाए। और वो यही सोचता होगा कि कुमार देवी कैसी संदिल, कैसी मतलब परस्त और कैसी खुद पसंद है कि अपने जाने वालों में से किसी के दुख दर्द में शामिल होना ही नहीं जानती। कुमार देवी जब खामोश हुई तब रामदास फिर बोल उठा, कुमार देवी, तुम्हें इस सिलसिले में परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उसने तुम्हारे सिलसिले में ना कोई शिकवा किया ना गिला, बस बेचारा मुस्कुराते हुए हंसते हुए मुझसे बात करता रहा। इसके अलावा उससे आगे रामदास कुछ ना कह सका, इसलिए उसकी बात काटते हुए भगवान दास कहने लगा, रामदास, ये गुफ्तगू अब खत्म करे, आओ सब मिलकर खाना खाए। रामदास खुश हो गया, फिर सब ने मिलकर खाना खाया। पहले ही में भूख तो मुझे वाकई लगी है, आज मैं आप लोगों के साथ ही खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं जल्द वापस चला जाऊंगा। रामदास खुश हो गया और कहने लगा था, पहले ही मैं इतने दिन जो यहाँ से गायब रहा, तो यहाँ से जाते वक्त मैंने इनसे कह दिया था कि दिल्ली में मेरे कुछ अजीज हैं, उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। शुक्र है इस सिलसिले में उन्होंने मुझ पर कोई शक नहीं किया, और उन्हें अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता तो अपने खास आदमी मेरे पीछे लगा जाते।
जो मेरे पूरे हालात की पड़ताल करके उन दोनों को खबर कर देते, अब तक वो दोनों मेरी गर्दन भी उड़ा चुके होते। यहाँ तक कहने के बाद रामदास खामोश होगा, फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। खाने के बाद रामदास वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमारी कुमार देवी और सोन किरण दोनों उस कमरे में चली गई जहाँ वो इकट्ठी शब बिस्तरी करती थी। उस कमरे में 2 मुसहरियाँ लगी हुई थी। कुमार देवी जब अपनी मुसहरी की तरफ चली गई तब सोन किरण उसके पास आई और उसे मुखातब करके कहने लगी, मेरी बहन, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी मुसहरी पर बैठकर थोड़ी देर के लिए तुमसे गुफ्तगू कर सकूं। इस पर कुमार देवी ने अजीब से परेशान कुन अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, मेरी बहन, ये तुम किस किस्म के अजनबीपन की गुफ्तगू कर रही हो? पहले ऐसा अंदाजा तो तुमने ना अपनाया था, अब तुम क्या हो गया है? सोन किरण आगे बढ़ी, चुपचाप कुमार देवी के पास बैठ गई, फिर उसे मुखातब करके कहने लगी, बहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक सवाल करूं। इससे पहले मैंने एक बार बावर्ची खाने में तुमसे सवाल किया था, लेकिन हालात की सितम ज़र्फी के जिस वक्त मैंने सवाल किया था उस वक्त बस्ती की लड़कियों ने दरवाजे पर दस्तक दी थी, लिहाजा मैं उनके साथ चली गई। आज फिर मैं वही सवाल तुमसे करती हूँ। अगर तुम उसे अपने लिए बाइस ज़हमत या अपने मिजाज के लिए बेजारी ख्याल करो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तुम्हारे जवाब से एक तरह का इत्मीनान और दिली सुकून होगा। इस मौके पर कुमार देवी ने शरारत अंगेज अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर हल्की से तबस्सुम में कहने लगी, मैं तो वो सवाल ही भूल चुकी हूँ जो तुमने किया था। जवाब में सोन किरण ने कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर वो सवाल तुम भूल गए हो तो मैं फिर कह देती हूँ। मेरा सवाल ये था कि यहाँ तक कहने के बाद सोन किरण को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ घूरने के अंदाज में कुमार देवी ने कहने लगी, हाँ खूब याद आया, तुमने पूछा था कि मैं अब आइबा से नफरत करती हूँ या मोहब्बत। सोन किरण ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगी, मैंने ये सवाल नहीं किया था। नफरत वाली बात मेरे बहन तुम अपने पास लगा रही हो, मैंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। अच्छा चलो, सवाल यूं ही सही, तो आज इस सवाल का जवाब दो। कुमार देवी के लबों पर खुशकुन और मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगी, जवाब इसका यह है कि मैं उससे नफरत नहीं करती। कुमार देवी के अल्फाज में सोन किरण मुस्कुरा कहने लगी, मेरी बहन, गोया मेरे सवाल का आधा जवाब है, लेकिन मैं पहले इसकी तफसील जानूंगी। इसके बाद मैं अपने आधे सवाल का जवाब तुमसे बाद में मांगूंगी। जो हालात मेरी बहन तुमने मुझसे कहे थे उनके मुताबिक तुम आइबा से पहले नफरत करती थी, उसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, बल्कि बकौल तुम्हारे मंदिर में जाकर तुमने सौगंध तक खाई थी कि जब तक आइबा को कत्ल नहीं करूंगी शादी नहीं करूंगी। जवाब में कुमार देवी ने अपने खूबसूरत सुर्ख होठों पर जुबान फिरी, कुछ देर सोचती रही, फिर कह रही थी, सोन किरण मेरी बहन, कभी कभी तकदीर का तिरकश और आदम की बिसीत और इदराक अजीब रंग दिखाए जाते हैं। इंसान के जज्बात और एहसासात और उसकी ज़ात के खिलाफ मुहर्रिक ये ताकतें कभी आप ही तीर, आप ही तरकश, आप ही कातिल, आप ही मकतूल, आप ही तेशा, आप ही कलक बन जाती है। यह अयाम की नीरकी भी इंसान को क्या क्या रंग दिखाती है। मेरी बहन, जब तक आइबा मेरे पास रहा मैं इसे अपनी ज़िंदगी की मंजिल, अपनी मुसाफतों की खुशकुन शाहिरा ख्याल करती रही। जब उसने मुझसे भागने की कोशिश की तब मैंने जाना वो मेरा आना मेरे पिंजरा पर ज़रब लगाना है। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, सोन किरण, बाद में मुझे पता चला कि मशीयत खुदावंदी भी कोई चीज़ है, इसलिए कि जब आइबा हमारे यहाँ से निकल कर चला गया तब मैं महीनों या यूं जानूं बरसों उससे मुतालिक सोचती रही, आखिर वो क्यों भागा। फिर मैं उससे सुलूक पर भी गौर फिक्र करती रही जो मैंने उससे किया, और हमारे यहाँ रहते हुए जो उसका रवैया था उसे भी ज़ेर गौर लाती रही। आखिर में इस नतीजे पर पहुंची कि आइबा का कोई कसूर नहीं था, हमारे यहाँ वो खुश मामली हम आहिगिनी का शिकार थी। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, फिर लंबा सांस लिया, कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, सोन किरण मेरी बहन, जिस वक्त आइबा हमारे यहाँ से भागा था उस वक्त वो भी नाबालिग था, मैं बिल्कुल बच्ची थी। मेरी सोचों, मेरे ख्यालात में जज्बात का दायरा वसी और फराक नहीं था, तंग नजरी का शिकार थी, अपने दीन धर्म के अलावा किसी और के दीन धर्म को कोई अहमियत ना देती थी। बाद में जो बुलूगत की तरफ भागती रही तो आइबा से मुतालिक मेरी सोचें गहरी होती रही और मुझे एहसास होने लगा कि मैंने उसके साथ ज्यादती की थी। अगर इस दौर में कभी वो मेरे सामने आता तो शायद मैं उसे माफ़ कर देती, उसे सुलह कर लेती, लेकिन ये सारी बात की बातें हैं इस वक्त कि जब आइबा हमें छोड़कर जा चुका था। तो ये जो मैंने राज मंदिर में जाकर सौगंध खाई थी, जब तक आइबा को कत्ल नहीं करूंगी शादी नहीं करूंगी, ये भी समझना कि मेरी कम उम्री, मेरी तंग नजरी की एक भयानक और खौफनाक गलती थी। बहरहाल सोन किरण मेरी बहन, अब ये बात तयशुदा है कि बल्कि यूं जानो कि मेरे दिल की आवाज़ हुई कि मैं आइबा से नफरत नहीं करती, मेरे ख्याल में तो अब तुम मुतमईन हो गई हूँ। जवाब में सोन किरण मुस्कुराई, तेज निगाहों से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मेरी बहन, अभी कहा जो सवाल मैंने तुमसे किया ये मुझे अपने सवाल का आधा जवाब मिला है। आधा जवाब तो अभी तुम्हारे हलक में अटका हुआ है जो मैंने बाहर निकालना है। सोन किरण ने चंद लम्हों के लिए बड़ी तेज निगाहों से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगी, कुमार देवी, मेरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। पहले वादा करो तुम सच्चाई पर रहते हुए इसका जवाब दोगी, मुझे टालने की कोशिश नहीं करूंगी।
जो तुम्हारे दिल की आवाज़ वो पुकारे उससे मुझे आगाह करोगी। कुमार देवी मुस्कुराई, फिर अपना हाथ उसने किरण कुमारी में हाथ में रखा और कहने लगी, तुम्हें बहन कहा है, अपने मन की कोई बात, अपने दिल का कोई फैसला, अपने जज्बात का कोई ज़म और गुनाह तुमसे छुपाने की कोशिश नहीं करूंगी। पूछो तुम्हारे सवाल का दूसरा हिस्सा क्या है। कुमार देवी ने जो अपना नरम और गुजार हाथ सोन किरण के हाथ पर रखा था, हल्के हल्के दबाते हुए सोन किरण से कहने लगी, सोन किरण, मैं अब आइबा से नफरत के बजाय मोहब्बत करती हूँ। सोन किरण ने बड़े प्यार से राजकुमारी कुमार देवी का हाथ थपथपाया अब और कहने लगी, अब तुम्हारी आंखों में नींद भर आई है, सो जाओ, मैं अभी अपने बिस्तर पर जाकर घुस जाती हूँ। इस पर कुमार देवी अपने बिस्तर पर दराज हो गई थी, जबकि सोन किरण अपने बिस्तर पर चली गई थी।